शहर के इस्पात नगर स्थित कनिष्क मोड़ इलाके में शुक्रवार की शाम प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमल्लिका बनर्जी ने भाजपा के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया एवं घटना की शिकायत दुर्गापुर थाने में दर्ज कराई। नमस्कार, আমি চন্দ্রমল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি পুলিশ পারমিশন নেওয়া ছিল, আমি আমরাইয়ের ওখানে আমার স্ট্রিট কর্নার ছিল, ওটা করলাম। ওটা যখন আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন আমাকে লক্ষণ গড়ই এবং তার বিজেপির ছেলেরা অনেকবার গেল র্যালির মতন করে। তো আমি সেই সময়তে দেখছিলাম যে আমাকে ওরা বারবার যাচ্ছে আসছে ওরা মাপছিল। তারপরে আমি যখন লিং রোডের এদিক দিয়ে আসছিলাম তখন আমাকে কয়েকটা ছেলে আমার হাতটা ধরে টানাটানি করলো এবং আমার ব্লাউজটা ছিঁড়ে দিল এবং ব্লেড বার করেছিল, ব্লেড দিয়ে আমাকে কাটতে এসেছিল। তো আমার সঙ্গে যে ছেলেগুলো ছিল তারা আটকে দিল এবং এই যে এখানটাও ছিঁড়ে দিয়েছে, এই যে ছিঁড়ে দিয়েছে এবং এই দিকটাও ছিঁড়ে দিয়েছে ব্লাউজটা। তো আমার এইভাবে কিছুক্ষণ আগে আমি যখন ঘর থেকে বেরোই তখন আমাকে ওই মায়াবাজারের যে প্রেসিডেন্ট আছে সুদীপ্ত গুণ, সে ফোন করে বলছে আমি তার সম্পর্কে কোনো কথা বলিনি, কারণ ফেসবুকে আমার সমস্ত বক্তব্যগুলোই ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে। আমার তো মানে শুধুমাত্র লক্ষণ গড়ের বিরুদ্ধেই আমি বলছি, যেহেতু ওনার সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ আছে। আমি সুদীপ্তদার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিনি। তা সত্ত্বেও উনি তাকে যেন একটা বিজেপির কোন কর্মীর হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিলেন এবং উনি আমাকে রীতিমতো ধমকি দিলেন যে আমাকে নাকি দেখে নেবে। 2 লাখ টাকা লক্ষণ গড়ই দিয়েছে আমাকে অ্যাটাক করার জন্য এবং লক্ষণদা জিতে গেলে আরও 10 লাখ টাকা দেবে শুধু আমাকে মারার জন্য। তো আমি এই কথাটা আমাদের দুর্গাপুর থানার ওসিকে জানালাম যে স্যার আমাকে ধমকি দিচ্ছে এরকম। তারপরেই এরকম ঘটনাগুলো আরও আমার উপরে অ্যাটাক হতো। নিহাত আমার সঙ্গে ছেলেগুলো ছিল, তাই আমাকে খুব বেশি করতে পারিনি, জাস্ট ব্লেডটা দিয়ে একটুখানি আঁচড় দিচ্ছিল আর এই ব্লাউজটা ছিঁড়ে দিয়েছে। আর এই দিদিরা সবাই দেখেছে এখানে ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে। আমার নাম চন্দ্রমল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি 277 দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট এবং আমি নমিনেশন করার আগে থেকেই আমার উপরে প্রচুর হুমকি ধমকি আসছে। যেহেতু আমি লক্ষণ গড়ের বিরুদ্ধে, তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমভাবে তথ্য প্রমাণ দিয়ে মানুষের কাছে সত্যকে উদ্ঘাটন করছি, সেই কারণে এমতো অবস্থায় আজকে আমার দুর্গাপুর পশ্চিম আমরাই মোড়ে একটা পথসভা ছিল। সেখানে যাওয়ার আগে যখন আমি ঘর থেকে বেরোবো আনুমানিক 3:51 নাগাদ আমাকে বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিমের 2 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুদীপ্ত গুণদা ফোন করেন এবং উনি আমাকে বলেন যে আমি নাকি গতকাল যে মায়াবাজারে যে প্রোগ্রামটা হয়েছে পথসভা, সেখানে আমি নাকি ওনার নামে অপপ্রচার করেছি বা বদনাম করেছি। না, আমি ওনাকে বলি যে দেখুন আমার প্রত্যেকটা বক্তব্য ফেসবুকে লাইভ করছি, আপনার সম্পর্কে যদি কোনো কথা বলে থাকি তাহলে সেটা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রমাণ আছে। আমি আপনার সম্পর্কে কেন বাজে কথা বলবো বা আপনার সম্পর্কে আমার বাজে কথা বলার কোনো প্রয়োজনও নেই। আমার লক্ষণ গড়ের বিরুদ্ধে লড়াই আমি ওই একটা জায়গাতেই ফোকাস রেখেছি, কিন্তু উনি বুঝতে চান না এবং উনি ওনার এক কর্মীর হাতে মোবাইলটা দেন এবং তিনি আমাকে যথারীতি নানা রকমভাবে হুমকি দেন যে আমাকে তিনি দেখে নেবেন, ভোটের পরে উনি আমাকে ব্যবস্থা নেবেন। আমি যখন ওনাকে বলি আপনি কে বলছেন, নাম বলুন, ওনার নাম বললেন না এবং আমি বললাম আপনি লক্ষণ গড়ের কাছ থেকে কত টাকা খেয়েছেন, বলে 2 লাখ টাকা পেয়েছি আপনাকে মারার জন্য, আর আপনাকে মারতে পারলে আরও 10 লাখ টাকা পাবো, আর ভোটে জিতে যাওয়ার পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেবো যে কী হাল আপনার করব। তারপরে আমি যথারীতি দুর্গাপুর থানার মানে আমাদের দুর্গাপুর পিএসের ওসিকে ফোন করি এবং ঘটনাটি জানাই। তারপরে আমি যখন আমরাই মোড়ে বক্তৃতা দিতে যাই তখন সেখানে পুলিশ ছিল। পুলিশের মানে অরবিন্দ থানার ইনফরমেশন অনুযায়ী ওখানে পুলিশ গাড়ি ছিল। পুলিশের সামনেই ওনারা দেখেছেন যে অনেকগুলো লক্ষণ গড়েই 4 চাকা নিয়ে যান, ওনার ওই 21 গাড়ি এবং আগে পিছে আরও 3-4টে গাড়ি এবং তার সঙ্গে অসংখ্য বাইক নিয়ে তাদের ওই ছোটো হাতি না এসি, ছোটো एसी ওই गाड़ी। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग आगामी 26 अप्रैल को होने वाली है, जिसे देखते हुए बंगाल झारखंड बॉर्डर के डिबूरी चेक पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड, कुल्टी थाना, चौरंगी फाड़ी पुलिस के संयुक्त अभियान में नाका चेकिंग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग आगामी 26 अप्रैल को होने वाली है, जिसे देखते हुए बंगाल झारखंड बॉर्डर के डिबूरी चेक पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड, कुल्टी थाना चौरंगी फाड़ी पुलिस के संयुक्त अभियान में नाका चेकिंग की जा रही है। इस विषय पर SC टीम के अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय कोई भी बाहरी लोग बंगाल में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए बॉर्डर में हर गाड़ी को रोककर तलाशी की जा रही है।
2 चक्का हो या फिर 4 चक्का, सभी गाड़ियों की जांच हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वजह से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों के लिए जो चुनाव होना है वह शांतिपूर्ण हो और किसी भी तरह का हिंसा ना हो। गाड़ी আসতে গেছে একটু আগে নামটা ভালো এই গাড়িগুলো তো এক আজকে নাকা চেকিং না, এটা 1.5 মাস ধরে চলছে। এখানে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং পুলিশ প্রশাসন একসঙ্গে এটা যৌথভাবে এই ডুবুটি চেকপোস্ট এবং বাকি চেকপোস্টগুলো চলছে। এখানে সমস্ত রকম বহিরাগত নাগরিক যারা আছেন মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাদেরকে চেক করা হচ্ছে, গাড়ি চেক করা হচ্ছে এবং গাড়ির মধ্যে যদি কোনো রকম ওয়েপেন্স পাওয়া যায়, কোনো রকম মানে বেনিয়মের কিছু জিনিস থাকে, বেনিয়মের ভোটার কার্ড ছাড়া এখানে কেউ ঢোকে, সেগুলো টোটালি চেকিং হচ্ছে। একটাই কারণ যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে অত্যন্ত শান্তিভাবে রক্ষা করা এবং এটার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলে চেষ্টা করছে যাতে নির্বাচনটা ঠিকঠাক হয়। এবং এই চেকিংটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো রকম কোনো রকম যেন বন্দুক, পিস্তল বা এই ধরনের ওয়েপেন্স যেগুলো আছে কিংবা বহিরাগত মানুষ যেন পশ্চিমবঙ্গকে ডিস্টার্ব করতে না। না, এরকমভাবে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। টুকটাক পাওয়া গেছে, সেগুলো ছোটোখাটো লাঠি ফাটি পাওয়া গেছে, বড় কিছু পাওয়া যায়নি। আর যেগুলো যা পাওয়া গেছে সেগুলো তাদের যেগুলো ব্যবহার করার জিনিস সেগুলো তারা নিয়ে গেছে। অর্থাৎ টাকা পয়সা যেগুলো বেশি, একমাত্র আমাদের বড় টাকা ছাড়া তো রোজগার এখানে কিছু মানে দেখানো যায় না, তো সেক্ষেত্রে মানুষ টুকটাক পেয়ে সেগুলো কোনো এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তো বড় কিছু পাওয়া যায় এখনো পর্যন্ত, বড় কিছু আমার চোখে আসেনি এখনো। আপনার নাম? আমার নাম সত্যব্রত ঘোষ, আমি এসএসটি সার্ভিলেন্স টিমে আছি। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बस सिर्फ 2 चरण बाकी रह गया है। इसके बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा और फिर इंतजार रहेगा तो मतगणना का। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर तो शुक्रवार शाम 6 बजे से ही थम चुका था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 चरण बाकी रह गया है। इसके बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा और फिर इंतजार रहेगा तो सिर्फ मतगणना का। आगामी 26 अप्रैल को 7वें चरण के लिए चुनाव होने हैं और इस बार पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर तो शुक्रवार शाम 6 बजे ही थम चुका है। चुनाव आयोग के चुनावी सभा को रद्द करने के बाद कल ना तो कहीं सभा हुई और न ही रैलियां निकाली गई, वर्चुअल सभाएं जरूर हुई थी। चुनाव में 2 दिन बाकी है। इसके तहत सालानपुर ब्लॉक के समस्त बूथों और इलाकों में केंद्र वाहिनी ने रूट मार्च किया। रामपुर ब्लॉक के श्यामदेही सहित विभिन्न बूथों पर सेंट्रल फोर्स ने राज्य पुलिस के साथ रूट मार्च किया। इसके साथ ही विभिन्न बूथों पर जाकर जायजा लिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल
आसनसोल में भी निर्वाचन के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से आसनसोल के विभिन्न जगहों पर रूट मार्च किया गया एवं केंद्र सुरक्षा बल के साथ राज्य पुलिस की भी उपस्थिति रही एवं आसनसोल, वारावानी, कुल्टी, दुर्गापुर, रानीगंज इत्यादि जगहों पर भी रूट मार्च किया गया। মর্নিং যাবেন তো बना रहा संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश सहित पश्चिम बर्धमान में भी लगातार कोरोना संक्रमित पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल प्रशासन ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप कोविड-19 हेल्थ सेंटर बनाया। पूरे देश सहित पश्चिम बर्धमान में भी लगातार कोरोना संक्रमित पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए आसनसोल रेल मंडल प्रशासन ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर कोविड-19 हेल्थ सेंटर बनाया है। इस सेंटर में आरपीएफ के महिला और पुरुष जवान तैनात रहेंगे, जो यात्रियों को कोरोना महामारी से बचने की जानकारी देंगे। शुक्रवार रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार पूरे देश में कोरोना फैल रही है, उससे हमारा पश्चिम बर्धमान का रेलवे इलाका भी वंचित नहीं है। यह काफी चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए आसनसोल स्टेशन में हेल्थ सेंटर बनाया गया है, ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, क्योंकि रेल स्टेशन एक ऐसा माध्यम है जहां पर सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ रहा है। हमारे हेल्थ सेंटर में लोगों को कोविड-19 के बारे में जो जानकारी चाहिए वह सब दी जाएगी, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन कहाँ मिल सकता है, आसनसोल में कोविड-19 अस्पताल कहाँ है। अगर इसकी जानकारी ना हो तो लोग सीधे हेल्थ सेंटर जाकर इसकी जानकारी ले पाएंगे। यहाँ आने जाने वालों के लिए जो भी अगर क्वायरीज रहता है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। मेरे स्टाफ यहाँ जो डिप्लॉयड है वो बताते हैं, और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है लोगों को इनकरेज करते हैं कि उसको मेंटेन करें। जैसे मास्क लगाना है, हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और अभी मैक्सिमम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि एक मई से 18 साल के ऊपर जो भी हैं उनको मास वे में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार ने करवाने का ये किया है। तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर जाते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा 5 नंबर के पास सड़क किनारे मानवाधिकार एसोसिएशन कार्यालय का निर्माणाधीन 4 दीवारी को मलय चक्रवर्ती ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के खुद दीवार और पिलर को तोड़वा दिया। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा 5 नंबर के पास सड़क के किनारे मानवाधिकार एसोसिएशन कार्यालय का निर्माणाधीन 4 दीवारी का जोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष व काजोड़ा ग्राम पंचायत के पंचायत सदस्य मलय चक्रवर्ती ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के ही खुद मौजूद रहकर पहले इसे लोगों से तुड़वाया, उसके बाद पिलर तोड़ने के लिए पेलोडर बुलाकर इसे तुड़वा दिया। वही मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर DK साव ने घटना की लिखित शिकायत अंडाल थाने में दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि जब तोड़े जाने का कारण उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका यह बनवाया हुआ पिलर कंस्ट्रक्शन अवैध है और आपको तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आकर बैठक करना है। सुबह में जो घटना हुई कैसे हुई? जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद जनाना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सच्चाई को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज सुबह जो है 10:30 बजे लगभग हमारा ये कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7-8 वर्षों से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रही है और लगभग 8-10 दिनों से कार्यालय के सामने, जो कि हमारे रजिस्ट्री जमीन के सामने पोर्शन था, मैंने एक छज्जा दे करके कार्यालय को लंबा करने का प्रयास किया, जिसमें जो है अपने बैठने का सभी साथी बाहर से बहुत से पीड़ित लोग आते हैं जो शिकायत लेकर के, कार्यालय छोटा होने के कारण उन्हें एक जगह का व्यवस्था करने का प्रयास किया। उसे पिलर तक दिया गया था, दीवार जोड़ी गई थी, परंतु बगैर सूचना, बिना इंफॉर्मेशन का, न ही रोड संचालक यानी PWD और ना ही BLR ऑफिस से, हमारे गाजड़ा ग्राम से बगैर सूचना के मौलवी चक्रवर्ती नामक व्यक्ति जो है कुछ अपने दबंग लोगों को साथ में आकर के हमारे पास डायरेक्ट ये कहते कि किसके परमिशन से आप इसे बना रहे हैं। हमने उससे कहा कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, यहाँ नहीं मैं रोजगार करने का व्यवस्था कर रहा हूँ, मानवाधिकार का कार्यालय है, बहुत दूर से लोग आते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनका मदद के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग का ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वेच्छापूर्वक आप लोगों से बैठ करके इस संदर्भ में डिस्कस कर सकता हूँ, इसके बारे में आलोचना कर सकता हूँ। परंतु वो लोग जो है आवेश में आकर के मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज करने लगे और उसके बाद दीवार तोड़े, हाथों से जितना संभव था तोड़ा तोड़ी किए। उसके बाद जो है कुछ देर बाद उनके कई संगठन के लोग उमड़ पड़े, एक झुंड बना करके पूरे कार्यालय के दीवार और बीम को तोड़ने का प्रयास किए। नहीं टूटने पर JCB बुला करके पूरे हमारे तहस नहस बिल्डिंग को जो तहस नहस कर दिए और गाली गलौज, धक्का मुक्की। हमारे एक जिला अध्यक्ष है अवधेश कुमार शाह, उनके मोबाइल को छीन करके फेंक दिया गया, जो चूर हो गई। हमारे गले में एक सोने का चैन था, जो इनके धक्का धुक्की में हाथाहाथी करने के कारण वो कहाँ गुम गया मिला नहीं मुझे। और लास्ट तक उन लोगों का एक जवाब था कि हम तुम्हें ठीक से नहीं रहने देंगे, इस जगह ऑफिस बंद कर दो। और हमारे सदस्यों को धमकाया गया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भाग जाते हो तो तुम लोगों को मार पड़ेगी और आगे चल करके तुम लोग को फर्जी मुकदमा या कहीं ना कहीं किसी तरीके से तुम लोग को कत्ल कर दिया जाएगा। तो आज मानवाधिकार, मैं बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ईमानदारी के साथ लोगों को मदद कर रही है, परंतु आज मानवाधिकार स्वयं जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ की प्रशासन की लापरवाही, और क्या मैं कह सकता हूँ कि जब प्रशासन सामने अंडाल थाना हमारे निकट है, उनके संरक्षण में खुलेआम दिन दहाड़े आकर के बुलडोजर और लोग गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ कर देते हैं, तो कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़िया से प्रकाशित करें। इसकी सूचना प्रशासन को कब मिली? मैंने लगभग संध्या, ये सारी घटनाओं से झेलते उलते डर भय से हम लोग साइड थे। ये क्लियर होने के बाद हम लोगों ने संध्या में थाना में डायरेक्ट लिखित कंप्लेन दिए हैं, वहाँ रिसीव किया गया है। कार्रवाई अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। अब हो सकता है रात में कार्रवाई करे या कल करे या ना करे, ये मैं जानकारी नहीं दे सकता। मलय चक्रवर्ती नामक व्यक्ति ये कौन सा पार्टी करता है? देखिए, एक राजनीतिक सत्य से है, राजनीतिक कोई गलत नहीं होती है। हालांकि वो TMC से इन्वॉल्व है, लेकिन मैं किसी पर्सनल राजनीतिक मुद्दे को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता समाज के लिए आते हैं। इसमें कुछ भ्रष्ट लोग अपने वाहवाही और दबंगई को बरकरार रखने के लिए ये सब गलतियां अपनाते हैं। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या आपसी रंजिश है, या आप कोई नेक काम करते हैं जो वो आड़े आ रहा है, वो लोग अपना निजी दुश्मनी के लिए ऐसा किया है? बहुत ही उचित आपने सवाल किया। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7 से 8 साल होने आई है, ईमानदारी से काम कर रही है। तो आप भली भांति जान सकते हैं कि ईमानदारी का मतलब, इसमें गलत व्यक्ति के लोग हमारे आड़े आते हैं, उनका विरोध शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन
को बंद करने या उन पर हावी होने के लिए इस सब जो भी ये लोग किए, इस सारा उन लोग का द्वेष मानवाधिकार पर था। हमारे साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं इतना चाहूँगा कि जब तक प्रशासन सचेत नहीं होता है, अगर मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों को मदद करना, हमें लगता है कि मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन यहाँ से शुरुआत हो रही है। प्रशासन इससे तत्काल एक्शन ले, कार्रवाई करे, जो सटीक उचित कार्रवाई है उस पहल को परिपूर्ण करे, न कि किसी प्रकार के सत्ता को देखभाल करे। सर, सबसे पहला नंबर, मानव अधिकार एक बहुत बड़ा संस्था है, लोग बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं। अगर मानव अधिकार के साथ अगर ऐसा किया जाए तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा? जी, मैं उसी संदर्भ में इस चिंतन को लेकर के आज सारे दिन मेरा टेंशन सर पे लगी थी कि मैं दूसरे को मदद करता हूं और जब हमारा ही मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है, कल हो सकता है हमारे घर में 10 गुंडे ढुक करके मारपीट कत्ल कर सकते हैं, हमारी वाइफ रहती है, बच्चे हैं, खून कर दिए जा सकते हैं। ये डर हमें अभी सता रही, क्योंकि गांव की एक परिस्थिति है जो कि एकजुट वो लोग हैं। पीडब्ल्यू की तरफ से या किसी तरह पार्टी की तरफ से कोई नोटिस? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं इन्फॉर्मेशन कहीं आपको पर अटैक जी हुआ? अगर पीडब्ल्यूडी या बेलोर ऑफिस से हमारे पास नोटिस आती, मैं जानता हूं कि बहुत से समाज में इस शब्द उठ रही है कि मानवाधिकार खुद गलत कर रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या पब्लिक के संरक्षण मदद के लिए मैं अगर आगे एक छज्जा दे रहा हूं, गलत कर रहा हूं? यहाँ हमारे पास यूपी, बिहार, दिल्ली से लोग आते हैं, यहाँ मैंने किसी घर तरह का कोई आलोचना नहीं किया है। इस पर मैंने जो हमारे विरोध किए उन्हें मैं खुलासा कहा कि ये सिर्फ लोगों के मदद के लिए किया जा रहा है, इसको बैठ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई उन लोगों को आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके पहले वो लोगों ने आपको किसी तरह का मैसेज देने का या इन्फॉर्मेशन का कोई कभी खबर हुआ? जी नहीं, कल एक सिंटू भट्टाचार्य है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए इंसान है, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना सूचना दिए थे कि आपके कार्यालय के आगे जो बन रही है उस पर शायद पार्टी ऑफिस में चर्चा चल रही है। मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर गलत है तो बैठकर मैं आलोचना करूंगा, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं करना है तो मैं इसे रोक दूंगा, और लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो वो भी आलोचना के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जिन व्यक्ति का बात नाम ले रहा हूँ, मौलवी चक्रवर्ती, उनसे ये हुआ, सुबह बात हुई सिद्धू जी से कि उनसे बात करके हम लोग बैठेंगे, लेकिन वो बात करने से पहले ही ये घटना को अंजाम दे दिए। आपको लग रही है कि प्रशासन सुनेगी? मैंने तो आज तक प्रशासन के निराश ही पाया हूँ। शायद मानवाधिकार के ऊपर इस हमला को हमें लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आशा हमें है कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से निभाएंगे। प्रशासन नहीं सुनेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इसके लिए तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। সকালে যে ঘটনাটা হলো মানবাধিকারের অফিসে, সেই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাইছেন? মানবাধিকার অফিসের বাইরে যে জায়গাটা আছে সেটা টোটালি সরকারের বা রোডের জায়গা। ওই রোডের জায়গাটা ওখানে এনকোচ হচ্ছিল, কনস্ট্রাকশন করে হঠাৎ ইলেকশনের পিরিয়ডে, যখন এই করোনা পিরিয়ডে কোর্ট আর সমস্ত কিছু বন্ধ আছে, তখন ওই জায়গাটিকে এনকোচ করছিল, যার ফলে আমাদের গ্রামবাসীরা ওখানে জমায়েত হয়। গ্রামবাসীরা গিয়ে জানতে চাই যে এই জায়গাটা এনকোচ করছো কী কারণে, বা এই কনস্ট্রাকশনটা কার কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস কোন জায়গা থেকে, সে কোনোই দেখাতে পারেনি। এবং একটা তাড়াতাড়িভাবে ওই জায়গাটাকে দখল করার একটা পরিকল্পনা ছিল, তারই বিরুদ্ধে আমাদের গ্রামবাসীরা গিয়ে ওখানে জমায়েত হয় এবং ওই অবৈধ কনস্ট্রাকশনকে সবাই মিলে ভেঙে দেয়, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের গ্রামের মানুষের তথা কোলের এলাকার মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা না হয়, গাড়ি চলাচলের অসুবিধা না হয় তার জন্য। কিন্তু ডক্টর ডিকে সাহেব এখানে দাবি করছে যে ওর অফিসে সোনার চেন ছিল, মোবাইল ছিল, ওনার লোকের উপরে আপনি হাত উঠাইছেন, তারপরে ওকে ইনফরমেশন দেয় নাই, পিডব্লিউ তরফ থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয় না, এটা কি সত্যি? পিডব্লিউ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি, বা কোন জায়গা থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি আমি জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের এই রাস্তাটা এত একটা ব্যস্ত রাস্তা, সেই ব্যস্ত রাস্তাটাকে দখল করার যে পরিকল্পনা ছিল, মানে এইরকম একটা পরিস্থিতি, যখন কোর্ট বা সমস্ত অফিসগুলো করোনার জন্য বন্ধ হয়েছে, ভোটের জন্য সবাই ব্যস্ত আছে, সেইটা আটকানোর জন্য গ্রামবাসীরা এক হয়ে সেই কাজটাকে আটকেছে।
ডক্টর ডিকে সাহা বলছে যে আপনারা ওনাকে ধমকি দিয়েছেন, মার্ডার করে দেবেন, এরকম কিছু ধমকি টমকি দিয়েছেন নাকি? না না, এগুলো ফালতু কথা, এগুলো বেশি রং চাপিয়ে কথাবার্তা, এসব কোনো আলোচনা কোথাও কোনো হয়নি। গ্রামের একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ গেছিল, সবাই মিলে ওকে প্রথম বলে যে তুমি এই কাজটি করবে না, তাতে ও মানতে চাইলে ও নানা রকম অজুহাত দেখায়। সেই জায়গাতে ওই যেখানে ওর জায়গা, যেটা ওর মেন অফিস রয়েছে সেইটা অবধি জায়গা, বাকি টোটাল জায়গাটাই রোডের জায়গা। বিনা কারোর পারমিশনে, বিনা অনুমতিতে ওই জায়গাটা দখল করছিল। সরকারি জায়গা দখল হচ্ছিল। আমার এলাকার মানুষের যাতায়াতের ভবিষ্যতের দিক চিন্তা ভাবনা করে গ্রামের মানুষ ওখানে জমায়েত হচ্ছে। কিন্তু উনি এখন বলছেন ওইটা আমি আট চালা। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन मरने वाले की संख्या में बढ़ती ही जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भी कमी से लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। वहीं रानीगंज में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। देश में कोरोना की लहर बेकाबू होती दिख रही है। आए दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भी कमी देखी जा रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तड़प तड़प के मौत होती जा रही है। इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। हालांकि इससे कब तक निजात मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रानीगंज कोयलांचल में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस विषय में रानीगंज के माता ट्रेडर्स के ऑक्सीजन की कमी को लेकर जानकारी ली गई, जहां माता ट्रेडर्स के हंसराज त्रिवेदी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी हो रही है। अस्पताल, एनजीओ सहित मरीज के परिजन भी ऑक्सीजन लेने यहां पहुंच रहे हैं, पर जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उतना, लेकिन फिर भी इसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि फिलहाल हम लोग इंडस्ट्रियल जरूरत पर ध्यान नहीं देकर मेडिकल जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए यहाँ उपलब्ध हो सके और किसी की जान ना जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर कोटा के बारे में पूछे जाने पर माता ट्रेडर्स के दुकानदार ने बताया कि बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का उनका 550 का कोटा है और डी टाइप का 350 का कोटा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के एक सप्लायर से अतिरिक्त सिलेंडर देने की बात हुई है, जो जल्द ही ऑक्सीजन सप्लाई करने का आश्वासन दिए हैं। साथ ही श्री त्रिवेदी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के बीच सिलेंडर को स्टॉक कर रहे हैं, पर अगर वे लोग स्टॉक ना करें तो हम लोग और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन दे सकेंगे। सर, पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे रानीगंज कोयला अंचल में एकमात्र डीलर माता ट्रेडर आप लोग सप्लायर हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? देखिए, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक के कारण अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हर जगह पे क्राइसिस है, हर स्टेट में क्राइसिस है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो खाली सिलेंडर्स लेके जाते हैं, वो अभी फ़िलहाल वहाँ से कई बार घूम के आ जाती, क्योंकि प्लांट के पास भी लिक्विड जो टैंकर है वो टैंकर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो उसको कंप्रेस करके ऑक्सीजन नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स में हम लोग कई बार उनको भी पूरा उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है, कई बार कितने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, एनजीओ आ रहे हैं, उनको भी पूरा हम लोग प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहे। स्टिल हम लोग से जितना बन पा रहा है रानीगंज क्षेत्र, आसनसोल, दुर्गापुर में हम लोग ज़्यादातर ट्राई करें कि कोलैप्स ना करे सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखते हुए, इस क्राइसिस को देखते हुए हम लोग जितना अपने से बन पा रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट डिमांड फुलफिल करने का चेष्टा में लगे। बीते कितने दिनों से यह स्थिति आप लोग देख रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये स्थिति वहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये जो सेकेंड वेव जब से हिट किया है, ये पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ है ऑक्सीजन में। और अभी हम लोग प्रॉपर इंडस्ट्रियल सप्लाई को भी बहुत हद तक स्टॉप करके पूरी अभी मेडिकल पे ही हम लोग पूरा जोर रखे हुए हैं। कितने सिलेंडर आप आपूर्ति करते हैं? आपके कोटा कितना सिलेंडर का है? हमारा कोटा ऐसे 500-550 बी टाइप, मतलब ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं इसका है। डी टाइप का हमारा 300-350 का कोटा है। और अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से स्पाइक हुआ है, हम लोग और भी माल मंगवाने पे लगे हुए, लेकिन कहीं भी कोई भी स्टेट पे अवेलेबल नहीं है। स्टिल हमारी तमिलनाडु से बात हुई है। तमिलनाडु के एक डीलर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विदिन 7 डेज
7 to 10 डेज उनका एक लॉट आने पर वो लोग हमें सप्लाई देंगे। क्या आपकी नज़र में इस अंचल में कोई ऐसे रोगी आए हैं जो ऑक्सीजन के बिना उनकी मृत्यु हो गई है, या ऐसी परिस्थिति आई है कि वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, जो पूरे आज देश में हाहाकार दिखाई दे रही है? तो ये स्थिति आपने अब तक सफ़र किया है, देखा है कि कोई पेशेंट बिना ऑक्सीजन का इस क्षेत्र में मर गया हो आपकी नज़र में? ये स्थिति रोज़ ही देखी जा रही है। आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर ऑफिस में रहोगे, आपको हर कुछ देर में एक पेशेंट आता हुआ दिखेगा। हमारे सामने ऐसा कई बार हुआ है कि एक 38-40 इयर्स की लेडी आके पाँव पकड़ के बोली है कि आप कैसे भी करके मुझे ऑक्सीजन सप्लाई दे दीजिए वरना मेरे पति मर जाएंगे। ऐसा करके एक बेटा आया कल, एक बेटा बोल रहा कि आप हमारे कोयलांचल का ही था लड़का, बोल आप कैसे भी करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कुछ करने का नहीं है, हम लोग फिर भी जितना हो सक रहा है सप्लाई को। क्या आप लोगों ने उन लोगों को सिलेंडर आपूर्ति करवाया? जी। सर, एक बात सुनी जा रही है कि वर्तमान में कृत्रिम रूप से भी ऑक्सीजन सिलेंडर को क्राइसिस किया जा रहा है, और दूसरा बात काला बाजारी किया जा रहा है, तो यह कहाँ तक सत्य है? ये काफ़ी हद तक हो चुका है। हम लोग जहाँ से सिलेंडर की बॉटल्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि अभी जैसे 8,000-10,000 में सिलेंडर्स अवेलेबल थे, अभी 30,000-35,000 में भी अवेलेबिलिटी नहीं है। 50,000 के ऊपर कई जगह पे प्राइसेस जा चुके हैं। हम लोग का विद इन ये 3 मंथ्स में 5 बार ऑक्सीजन का प्राइस बढ़ चुका है। स्टिल हम लोग जितना भी है इस प्राइस को सेटल डाउन करके अभी 3 महीने से कांस्टेंट एक ही प्राइस पे सप्लाई कर रहे हैं, ताकि कोई भी इन्फ्लेशन या कोई भी वर्ग के लोग इस चीज़ से आघात ना हो, और उसी प्राइस में हम लोग दे के लगभग सभी वर्ग के लोगों को एंटरटेन कर सकें, उनको बचा सके। यही हमारा। क्या आप लोग सिलेंडर बेच भी रहे हैं? बाजार में देख रहे हैं 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति सिलेंडर सिलेंडर अभी फिलहाल हम लोग नहीं बेच पा रहे इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर बेचकर हम लोग अपना कोटा कम कर लेते हैं तो ये जो सर्कुलेशन से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम लोग उनकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे, उनको बचा पाएंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी फिलहाल 3 महीने से हम लोग इस चीज़ को हम लोग स्टॉप कर चुके हैं, और आगे वाले वर्तमान काल में अगर और भी हम लोग जिस हिसाब से कोटा अगर बढ़ता है तो फिर हम लोग सोचेंगे कि वापस से सेल का ये ऑप्शन अवेलेबल। कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग सिलेंडर का रेंट लेते हैं? हम लोग का 3 रुपये ही है पिछले 2 सालों से। अभी भी हम लोग प्रतिदिन 3 रुपये ही ले रहे हैं, कोई भी हमारे रेट पे हाइक नहीं हुआ है। सर, सुना आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम में 3 गुना 4 गुना वृद्धि हुआ, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आप पुराने रेट में ही लोगों को 3 रुपया पर डे के हिसाब से सिलेंडर प्रदान कर रहे हैं, तो ये आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? हमारे अपने मेडिकल है जो हम लोग परचेज करके रखे हुए हैं, कुछ हमारे कंपनी से लिए गए हैं, तो रेंट पे हम लोग ऑलमोस्ट मतलब ऑन अभी जो कॉस्ट प्राइस है उसी कॉस्ट प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। अभी हाइक करने से, क्योंकि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं इस आपातकालीन स्थिति में, तो अभी बढ़ाने से शायद हर वर्ग के लोग खुश भी ना हो और ना ही उनकी पूर्ति हो पाएगी डिमांड की। तो अभी उस चीज़ को देखते हुए अभी फिलहाल 3-4 महीने तक एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए हम लोग वही रेट रखेंगे, फिर आने वाली स्थिति में आगे आपका जो कोटा है, जो आपने बताया कि आप 500-550 का कोटा है आपका, तो वो मिलने में आपको कहीं समस्या हो रही है? आपके कोटे का सिलेंडर मिलने में? कई जगह सिलेंडर अभी भी फंसे हुए हैं, कई जगह से मिल नहीं रहा है, कई लोग हमारे से लेके दूसरी जगह से भराते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। स्टिल हम लोग अभी भी अपील करते हैं उन लोगों से कि आप लोग अपना जो भी सिलेंडर्स आप लोग रख के रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए ना रखें। यहाँ सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, पेशेंट्स डेली आ रहे हैं हमारे पास में, तो फिलहाल अभी कोई भी जो लोग भी हमारे सिलेंडर्स को रख के अपने घर पे रखे हुए हैं उनसे मेरी यही अपील है कि आप फिलहाल उस चीज़ को रिटर्न कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रोटेशन में ला के हर पेशेंट की डिमांड को पूरी। सर, एक बात देखी जा रही है पूरे भारतवर्ष से भारत स्तर में ही देखी जा रही है कि लोगों को कोरोना का जो सेकेंड वेव है उससे काफ़ी डर गए हैं, लोग काफ़ी चिंतित हो गए हैं, लोग बेवजह भी अपने घरों में सिलेंडर लेके खरीद के रख रहे हैं, नई ज़रूरत होने पर भी रख रहे हैं, तो आप इसका कितना समर्थन करते हैं? क्या उन लोगों को रखना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? या देखिए, एक बात तो यह है कि वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि समय पर सिलेंडर नहीं मिलेगी, जैसे आपने कहा, तो क्या आप इस बात को कितना समर्थन करते हैं? उन लोगों को खरीद कर रखना चाहिए या फिर आप लोग उस समय आपूर्ति करवा दीजिएगा? इस बात का समर्थन में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो स्पाइक हुआ है, इतना डिमांड हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है जो कुछ वीआईपी लोग या कुछ अपर दर्जे के लोग इस चीज़ को
मतलब ज़्यादा ही एक डेंजर में लेके वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए पहले से रख रखे हैं, और इस रखने की वजह से ही देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस और बढ़ चुकी है। आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीजन या नेबुलाइजर के लिए, तभी आप जाएं। आप बिना बेवजह अपने घर में या अपने कारखाने में इसकी स्टॉकिंग ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी रोटेशन पे ही हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि सिलेंडर्स जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं जो इनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आप रिटर्न कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी इस आपातकालीन स्थिति में बचा सके। धन्यवाद। आपका परिचय? हंसराज त्रिवेदी। हम लोग पंजाबी मोड़ में माता ट्रेडर्स के अंतर्गत सारी मेडिकल और वेरियस गैसेस में डील करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव के दौरान आसनसोल शहर के कई इलाकों में भाजपा की तरफ से एक होर्डिंग लगाया गया था जिस पर लिखा था घोटक विदाई। इस पोस्टर को लगाए जाने के बाद तृणमूल ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा कि राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक का यह अपमान है। चुनाव के दौरान आसनसोल शहर के कई इलाकों में भाजपा की तरफ से एक होर्डिंग लगाया गया था जिस पर लिखा था घोटक विदाई। इस पोस्टर को लगाए जाने के बाद से टीएमसी ने इस पर नाराजगी जताई थी। टीएमसी का आरोप था कि ऐसे होर्डिंग लगाकर भाजपा शिष्टाचार की हदें तोड़ रही है। राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक का इस बैनर के जरिए अपमान किया गया जो उचित नहीं है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का नकारते हुए घटक विदाई शब्द को बंगाल की संस्कृति की परंपरा का नाम दिया था और कहा था कि बांग्ला नव वर्ष के पहले घट की विदाई होती है और नए वर्ष का आगमन होता है, इसीलिए पोस्टर में घटक की विदाई लिखी गई थी। हमारे बैनर से किसी का अपमान नहीं हो रहा। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो चुका था, लेकिन एक बार फिर एक नई तरह का होर्डिंग दिखाई पड़ा। आसनसोल नागरिक वृंद के सौजन्य से आसनसोल के कई क्षेत्रों में होर्डिंग लगाई गई है जिस पर बांग्ला में एक कविता लिखी है। कविता के आखिरी पंक्ति में लिखा है कि अपराधी की जगह सलाखों के पीछे है। यह नई होर्डिंग घटक विदाई होर्डिंग के पास ही लगाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैनर के माध्यम से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु को लेकर लिखा गया है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।